A very good morning to everyone. So today we are starting with our chapter number 11, which is relational database. Now what does this chapter will contain? So this chapter will be having the purpose of DBMS. What does DBMS is? We will see in later part of this video. What is this relational database model? The relational model terminology, and we will be going through the brief history of the software that we will be using under this chapter under the topic of DBMS. So that is MySQL. So there is one brief history topic which is given in this chapter related to MySQL. MySQL database system, there will be some of the things covered. What does this MySQL do? How to start MySQL, and what is the difference between SQL and MySQL. So these are the all things that we are going to cover in this chapter. So the very first thing, as from the name itself, we can see here it is written relational databases. So the first thing that we must understand is what does this database mean. So database, we can say it is simply we can say it is a computer based record keeping system. That means if we have to keep a record of anything over the computer, over the internet, so the thing that we will be using is database. Using the database, we can collect various records from various sources and keep it at a place, so that will be called as a डेटाबेस है ना. कंप्यूटर में जो ये रिकॉर्ड कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है उसको डेटाबेस कहा जाता है. ठीक है, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से द कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना. सो जो भी डेटा है उसको अगर हम कलेक्ट करके रखते हैं, कोई भी वेबसाइट है फॉर एन एग्जांपल, सो इट इज़ हैविंग रिकॉर्ड ऑफ all the customers that generally use their websites. They are having their user IDs and passwords. So all those user IDs and passwords and all the data inside those users and their IDs has been kept at a particular place. So that particular place where it is kept, or the particular thing which is kept according to a person, that is called as a data. So they are keeping a record for my data, as well as if you are also using that website, so they are having data of yours as well. So this type of collection of data, we can say that it is called as a डेटाबेस. हर एक वेबसाइट अपना अलग अलग डेटा का कलेक्शन रखती है और उसको डेटाबेस कहा जाता है. एंड अ प्लेस वेयर दिस डेटाबेस विल बी स्टोर्ड इज नोन एज अ सर्वर. उसको कहा जाता है सर्वर. ठीक है. सो सर्वर इज अ प्लेस वेयर एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड, मीन्स एवरी डेटाबेस विल बी स्टोर्ड, एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स दैट want to use that data. All right. So this is some basic about database. Now let's see what all information has been given inside this, and then we will be moving further towards the topics. It maintains any information that may be necessary to the decision making process involved in management of that organization. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर होल्ड करके रखी जाती है. A database may also be defined as a collection of interrelated data stored together to serve multiple applications. हम लोगों ने 10th क्लास में भी डेटाबेस के बारे में पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है. एंड आई थिंक हम लोगों ने MySQL के भी कुछ टॉपिक्स वहाँ पर देखे थे लास्ट ईयर, और MySQL पे कैसे वर्क करता है. वी हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ द क्वेरीज लास्ट ईयर एज वेल. सो वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है कि ये एक इंटरलेटेड डेटा को स्टोर करता है, जिसको कि मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ कर सकती हैं. जैसे कि फेसबुक का डेटा है, तो फेसबुक का डेटा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सम अदर वेबसाइट्स एज वेल. इफ़ यू आर ट्राइंग टू यूज़ वेबसाइट, वी कैन से लेंसकार्ट. So Lenskart is a website that is used for some shopping related to optics. So optical से शॉप करना है आप लोग के पास, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का अगर अकाउंट नहीं है, so you can do what? You can log in through Facebook as well. So if you are supposed to do like that, so you can say the data of Facebook which is made for Facebook individually, that particular data has been now used for the other websites as well. So that particular data of Facebook is serving to other websites as well, है ना. एक ही डेटा, एक ही फेसबुक है जैसे, तो सिर्फ फेसबुक का जो डेटाबेस है, दैट डेटाबेस इज सिंपली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर एप्लीकेशंस एज वेल. तो यहाँ पर डेटाबेस यही होता है, इट कैन सर्व मल्टीपल एप्लीकेशंस. ठीक है. वो जैसे चाहे वैसे यूज़ किया जा सकता है, बट ओनली फ्रॉम द इट विल बी ओनली यूज्ड इफ़ फेसबुक इज़ अलाउिंग सो. अगर फेसबुक अलाउ करता है तो ही इस तरीके के एप्लीकेशंस इनके डेटाबेस को यूज़ कर सकती है. इन सिंपल लैंग्वेज दे हैव प्रोवाइडेड अस द डेफिनेशन. सो द डेटाबेस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा stored together
to serve multiple applications. This is the very simple definition which has been given to us related to the database. All right, अब आगे देखते हैं. देखो, हाँ, डेटाबेस को जब भी किसी डेटाबेस को रिट्रीव करना होता है तो सिंपली हमको नॉर्मली ऐसे परमिशन नहीं होती है कि हम डेटाबेस को रिट्रीव कर सकें या उसको देख सकें. तो DBMS आर द सॉफ्टवेयर्स, DBMS नाम के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. सो दिस DBMS सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस. They are basically responsible for storing the database, for maintaining the database as well as for utilizing the database, है ना. So DBMS, database management system, from the name itself it is very clear. DB मतलब database, MS मतलब management system. उस database को manage करने वाला जो system होगा, जो software होगा, उसको बोला जाएगा DBMS. It generally does what? It stores, it maintains and it utilizes the database. ठीक है. A database along with a DBMS is referred to a database system, है ना. कोई डेटाबेस अकेला है तो हम उसको डेटाबेस ही बोलते हैं. ठीक है. कोई सॉफ्टवेयर अकेला है तो उसको हम DBMS बोलेंगे. बट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस अलॉन्ग विद द DBMS विल बी नोन एज डेटाबेस सिस्टम. तो ये टर्म आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए. व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम? तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम इज referred to as the collection of database along with its database management system. इन दोनों के कलेक्शन को डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है. ठीक है. इन्होंने यहाँ पर DBMS में ऐसा बोला है कि यहाँ पर हम जो भी डेटा यूज़ करते हैं यहाँ पर रिडंडेंसी नहीं होती है. लास्ट ईयर भी हमने देखा था जब MySQL हमने पढ़ा था, जब डेटाबेस का चैप्टर हमने देखा था IT में, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ भी डिस्कस करी थी. एक बार और यहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं. इन अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम परमानेंट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स. अगर हम किसी टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, जैसे कि हम पेन और पेपर की बात करें, तो परमानेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो अलग अलग फाइल्स में स्टोर किए जाता है. ठीक है. अ नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रिटन टू एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स एंड ऐड रिकॉर्ड्स टू द एप्रोप्रिएट फाइल्स. But this scheme has a number of limitations and disadvantages such as data redundancy, data inconsistency, unshareable data, unstandardized data, insecure data, incorrect data. ठीक है. जब कभी आप किसी टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करोगे तो वहाँ पर जब डेटा स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं हम लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं डेटा के. जैसे कि डेटा की रिडंडेंसी हो सकती है. व्हाट डज रिडंडेंसी मीन्स? तो डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा. डेटा डुप्लीकेट डेटा बार बार स्टोर हो सकता है कि एक ही डाटा बार बार रिपीट हो जाए. मेरे पास जैसे 1000 रिकॉर्ड्स है, मैंने 7th नंबर पे जो रिकॉर्ड लिखा है हो सकता है वो 700 नंबर पे भी रिपीट हो जाए. इट मे बी अ चांस, है ना. तो यहाँ पर रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी है अगर हम टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो. ठीक है. डेटा की इनकन्सिस्टेंसी भी हो सकती है. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा बट नॉट मैचिंग विथ वन अनदर. इसको बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी. मतलब कि डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ तो बन गई बट वो मल्टीपल कॉपीज़ भी जो हैं वो भी एक दूसरे से मैचिंग नहीं हो रही हैं. तो वो क्या होगा? इनकन्सिस्टेंट बना देगा हमारे डेटा को. तीसरी बात, अनशेयरेबल डेटा. फाइल है, फाइल रखी रहेगी, फाइल आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता अपने पर्पस के लिए. तो दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन विच इज़ अंडर द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. अनस्टैंडर्डाइज्ड डेटा, किसी भी ऑर्डर में कैसे भी हम डेटा को लिख लेते हैं वहाँ पर. इनसिक्योर डेटा एंड इनकरेक्ट डेटा. सो इनसिक्योरिटी भी रहती है डेटा की और डेटा कहीं ना कहीं इनकरेक्ट भी होता है. सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस दैट कैन बी फेस्ड ड्यूरिंग द creation of a record in a typical file processing system. But all these we can say all these disadvantages have been neglected or have been removed by using the DBMS system. जब हम DBMS सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. वहाँ पर ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. आगे बढ़ते हैं. वी आर प्रोवाइडेड विद अ टर्म कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस. चैप्टर का नाम ही है रिलेशनल डेटाबेस. तो अब ये जो टर्म है, इस टर्म को हम समझते हैं रिलेशन. रिलेशन टर्म से क्या हमको बताया गया, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था रिलेशन मतलब टेबल्स, बट यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं उन्हीं सारी चीज़ों को.
In relational data model, the data is organized into tables. अब रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है, तो रिलेशनल डेटा मॉडल डीबीएमएस फॉलो द रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। जो भी डीबीएमएसएस होते हैं वो सारे डीबीएमएसएस रिलेशनल डेटा मॉडल पे ही वर्क करते हैं। मतलब क्या होता है, सो द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। नाउ व्हाट डज अ टेबल कंटेन, सो टेबल कंटेन रोज एंड कॉलम्स, दैट इज ऑलरेडी वेरी क्लियर टू अस। सो यहाँ पर ये जो टेबल्स होते हैं, दीज टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस, है ना। मतलब कि जो भी हमारा डेटाबेस होता है वो सारा का सारा डेटाबेस टेबल्स के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। A row in a table represents a relationship among set of values. Since a table is a collection of such relationship, it is generally referred to using the mathematical term relation. ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल हमको बताया हुआ है, उस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। Let us see how a sample database can be represented in relational form. The sample database being shown here has 3 tables. ठीक है, एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर 3 टेबल्स हैं। ठीक है, क्या होता है, कोई बड़े से डेटाबेस के अंदर छोटे 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 अलग अलग डेटाबेसेस कंटेन किए जा सकते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर बताया है, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट अ वेबसाइट नेम्ड अमेज़ॉन, तो इस अमेज़ॉन नाम की वेबसाइट के अंदर मैं अगर बात करूँ तो इसके पास इसके एम्प्लॉयज़ का एक टेबल अलग से हो सकता है, इसके पास जो ये प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है उनका डेटाबेस अलग से हो सकता है, जो जो सप्लायर्स इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं उनका डेटाबेस अलग से हो सकता है, और जो कस्टमर्स हैं इनका डेटाबेस अलग से हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो स्मॉल स्मॉल डेटाबेसेस हैं, ये स्मॉल स्मॉल डेटाबेसेस एक अमेज़ॉन नाम के डेटाबेस के अंदर है। So similarly, we are having one sample database, and under that sample database we are having 3 tables. उस सैम्पल डेटाबेस के अंदर 3 टेबल्स हैं। वो 3 टेबल्स कौन कौन से हैं, एक है सप्लायर्स, एक है आइटम्स, एक है शिपमेंट्स। तो ये 3 टेबल्स हमको यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एक सैम्पल डेटाबेस है, उसके अंदर ये 3 टेबल्स हैं। ठीक है, अब सप्लायर टेबल के अंदर तो कौन कौन से कॉलम्स हैं। अब टेबल है अगर, तो टेबल में कुछ कॉलम्स होंगे, किसी कॉलम का नाम कुछ कुछ होगा और उसके अंदर वो पर्टिकुलर वैल्यूज स्टोर होंगी। तो यहाँ पर क्या है सप्लायर्स टेबल के अंदर के कॉलम्स, तो सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस और सिटी। ठीक है, तो सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, स्टेटस और सिटी, मतलब यहाँ पर 4 नंबर ऑफ कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे सप्लायर टेबल में। सिमिलरली आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस, these are the columns which will be there inside the items table. And other than this, supplier number, item number and quantity supplied will be the column names for the shipment table. ठीक है, colored fields represent the primary keys. तो यहाँ पर जो colored fields है वो कहीं ना कहीं primary keys को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर कलर्ड फील्ड्स क्लियरली तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सारे के सारे कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, बट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ ये, दीज आर द कलर्ड फील्ड्स। सो दीज कलर्ड फील्ड्स आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली द प्राइमरी कीज। नाउ प्राइमरी कीज क्या होती हैं, तो प्राइमरी कीज आर वी कैन से सम ऑफ द फील्ड्स ऑफ अ टेबल विच कंसिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यूज़, है ना। यूनिक वैल्यूज़ जिस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर होती है। ठीक है, फील्ड मतलब क्या, ये मेरा टेबल है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें मेरी फील्ड कहलाएंगी, है ना। तो ये फील्ड है और ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ये लास्ट ईयर हमने देखा था। तो क्या बोल रहे हैं हम कि किसी फील्ड में अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो उसको प्राइमरी की कहा जाता है। खुद को यूनिकली आइडेंटिटी जिसकी होती है, यूनिक आइडेंटिटी जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, कोई एक ऐसी फील्ड जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्राइमरी की कहा जाता है। आगे और भी ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लियरली ये और ये तीनों हमारे क्या हैं, तो ये तीनों के तीनों हमारे प्राइमरी कीज़ हैं। इनको पिंक कलर से हाईलाइट कर कर इन्होंने बताया हुआ है। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, अब इस टेबल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमको इन्होंने बताए हुए हैं। वी ऑलरेडी नो, बट फिर भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ बताई है बाइट। व्हाट डज अ बाइट कॉल्ड, बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स एंड इट इज़ यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर।
यहाँ पर ये हर एक कैरेक्टर, यहाँ पर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं ये कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स स्टोर होती है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। सो स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, है ना। अब बाइट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा तो 1 बाइट इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट्स, दैट इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, आगे देखते हैं डेटा आइटम। व्हाट इज डेटा आइटम? सो डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेम डेटा, इट may consist any number of bits or bytes. A data item represents one type of information and is often referred to as field और data element. तो ये जो हैं ये यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें, सो दीज आर वॉट, सो दीज आर द डेटा आइटम्स। इनको फील्ड्स भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे डेटा आइटम्स हैं, वी कैन कॉल इट एज अ फील्ड एज वेल, इसको हम फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट्स कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो है दिस इज़ अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक पर्टिकुलर फील्ड, आइटम नंबर, आइटम नेम और प्राइस, इन तीनों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहाँ पर मिल रही है? तो इस पर्टिकुलर वैल्यू में, I1 मिल्क और ₹15। तो ये क्या है? दिस इज़ अ रिकॉर्ड। ये एक कंप्लीट फील्ड है, ये एक कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दीज फील्ड्स। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक रिकॉर्ड है। ऑलराइट, सो दिस विल बी नोन एज अ रिकॉर्ड। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टेबल। टेबल क्या होता है? तो टेबल मतलब कि जो ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेबल बोलते हैं। और बस यही सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हुई हैं। जैसे कि ये टेबल एग्जांपल के लिए बताया हुआ है। तो देखो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, सेल्समैन नंबर को इन्होंने प्राइमरी की कंसिडर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइमरी की लिखा भी हुआ है। फील्ड्स कौन कौन सी हैं? तो सेल्समैन नंबर, फर्स्ट नेम, सरनेम, सेल्स मेड, टारगेट। सो दीज आर द फील्ड्स। व्हाट आर द रिकॉर्ड्स? सो दिस इज अ रिकॉर्ड, this is a record. So all these individual values which are given over here will be known as the records. अब बाइट्स क्या होती हैं? तो यहाँ पर देखो, जैसे स्वामी इज़ अ वैल्यू विच इज़ गिवन इनसाइड द सरनेम। तो ये स्वामी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं। तो ये 5 कैरेक्टर्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? तो ये 5 बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं। ऑलराइट, तो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उतनी नंबर ऑफ बाइट्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये रिपीट हो जाए, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्राइमरी की है और प्राइमरी की अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, इसीलिए वो रिपीट नहीं हो सकती। ये इंडिविजुअल कंप्लीट वैल्यूज़ होती हैं। इन कंप्लीट वैल्यूज़ को हम डेटा आइटम भी बोल सकते हैं। किसी भी फील्ड में लिखी जाने वाली इंडिविजुअल वैल्यूज़ जो हैं इनको डेटा आइटम्स बोल सकते हैं। और ये डेटा आइटम्स कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसके बेसिस पर। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर हमको बताई हुई है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो लास्ट ईयर भी हमने देखा था, यहाँ पर भी हमको बताया है ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई IBM DB2, IBM इन्फॉर्मिक्स, SAP साइबेज, एडेप्टिव सर्वर एंटरप्राइज, सैप साइबेज, IQ टेराडेटा, पोस्टग्रेसक्यूएल, SQL लाइट। कोई 4 या 5 नाम आपको पता होने चाहिए कि कोई 5 रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से, एटलीस्ट 5 एंड दे आर सफिशेंट, उनसे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। हम इसमें से ये वाले को यूज़ करेंगे MySQL को, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इंटरनेट से जिसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकें और यूज़ कर सकें, उन चीज़ों को ओपन सोर्स कहा जाता है। ऑलराइट, let us now move towards the things that are given to us. MySQL ये एक relational database model है that can work virtually on all the platforms including Linux, Unix and Windows. आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इवन आप Linux यूज़ कर रहे हो, Unix यूज़ कर रहे हो, इधर आप Windows ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो इन सब पर ये MySQL डाउनलोड किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये ओपन सोर्स है और इसको हम इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं LAMP मतलब ये एक ओपन सोर्स सिस्टम ने एक लिस्ट बनाई है, लैम्प, जिसमें सारे मेजर सॉफ्टवेयर आते हैं। तो L से होता है लिनक्स, A से होता है अपाचे,
एम से होता है माई स्क्वेल और पी से होता है PHP पाइथन पर्ल। तो यहाँ पर ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो सारी की सारी ओपन सोर्स हैं और मोस्टली यूज्ड हैं। तो यहाँ पर ये लैम्प का फुल फॉर्म भी हमको पता होना चाहिए। अब रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी में हमको क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं, चलिए उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो ये जो रिलेशनल मॉडल है, ये रिलेशनल मॉडल किसने बनाया था? तो ये बनाया था EF कॉर्ड ने, जो कि IBM में थे। उन्होंने ये एक रिलेशनल मॉडल बनाया था। ठीक, ये जो DBMS का कंसेप्ट है ये उन्होंने ही दिया हुआ है। अब देखो इस पूरे के पूरे मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को एक बार हम समझते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन के अंदर मतलब एक टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो वो टेबल की प्रॉपर्टीज़ हम पहले समझ लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट विच इज़ गिवन टू अस इज in any given column of a table all items of the same kind whereas items in different columns may not be of the same type, है ना। सीधी सी बात है, अगर मैंने एक कॉलम बनाया है रोल नंबर का तो मैं इसमें सिर्फ रोल नंबर सी लिखूंगा, वहाँ पे नाम नहीं लिखूंगा। इस पहले पॉइंट का मतलब यही है। दूसरा कॉलम बनाया है अगर फर्स्ट नेम का तो मैं सबके फर्स्ट नेम ही लिखूंगा, यहाँ पर उनका रोल नंबर नहीं लिखूंगा। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में सारे के सारे आइटम्स सेम काइंड के ही होते हैं और किसी दूसरी फील्ड में सारे के सारे आइटम्स दूसरे टाइप के होते हैं। अगला पॉइंट, फॉर ईच रो ईच कॉलम मस्ट हैव indivisible value and for a row a column cannot have more than one value। ठीक है, वैल्यू इनडिविजिबल होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर सारी वैल्यूज सिंगल वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड वैल्यूज़ नहीं हैं, और ये सिंगल वैल्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि शिल्पी और संदीप एक ही फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है, या सरनेम में देखोगे तो अरोरा और लूना एक साथ नहीं लिखा हुआ है। टारगेट्स में देखोगे तो ये सिंगल वैल्यूज़ डिफरेंट फील्ड्स में लिखी हुई हैं। मतलब ये इनडिविजिबल वैल्यूज़ हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होल्ड नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर सिंगल वैल्यूज़ ही आती हैं। ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। सारे, हर एक बार एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरा रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर हर रो डिस्टिंक्ट है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रो रिपीट हो जाए, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट वी विल कॉल इट एज डेटा रिडंडेंसी। नाउ व्हाट डज रिडंडेंसी मीन? रिडंडेंसी मीन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, एंड इन एनी केस if we are not working on a typical file management system, so in any case it is not at all possible that two rows in a particular relation seems to be the same। ऐसा कभी नहीं हो सकता, दे वोंट बी सेम इन एनी केस। यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी नहीं हो सकती। जब कभी ऐसा होगा तो MySQL और any other DBMS that we are using will provide an error, it will show an error, and from the error itself we can understand that the value is getting repeated and we should not enter the value as it has already been entered। तो यहाँ पर कभी भी किसी रिलेशन में रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। हर एक जो वैल्यू होती है हर एक रो की वो डिस्टिंक्ट होती है। देयर इज़ नो ऑर्डर मेंटेन फॉर रोज इनसाइड अ रिलेशन। यहाँ पर कोई एक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जाता किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। कैसे भी वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वी कैनॉट रिट्रीव एनीथिंग बाय सेइंग दैट फ्रॉम रो नंबर 5 कॉलम नेम इज़ टू बी एक्सेस्ड, है ना, कि 5वीं रो से ये कॉलम बताओ, ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको कॉलम नाम से ही सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेस करना पड़ता है। द कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स एंड द ऑर्डरिंग ऑफ दीज कॉलम्स इज इममटेरियल। ठीक है, आपके ऊपर है, इममटेरियल है वो, कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है कि ऐसे ही कॉलम्स की नेमिंग करनी है, तो आप जैसा चाहें वैसे कॉलम का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट बात क्या है, सिर्फ देयर शुड बी सम डिस्टिंक्ट नेम्स विच विल बी असाइंड टू द कॉलम्स। ठीक है, अब डोमेन, देयर इज अनदर टर्म विच इज कमिंग विच इज अ डोमेन। Domain is what? So a domain is a pool of values from which the actual values appearing in a given column are drawn। जैसे कि मैंने बना दिया रोल नंबर। अब रोल नंबर नाम का एक फील्ड है और मेरी क्लास में अगर सिर्फ 40 स्टूडेंट्स है, सो आई कैन से द डोमेन इज 1 to 40। मेरा डोमेन 1 से लेकर 40 है। मतलब कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी दैट विल रेंज फ्रॉम 1 to 40। If any value from other than 40
is entered, so it will give an error. तो यहाँ पर डोमेन, कभी भी अगर डोमेन वर्ड आता है डेटाबेस के अंदर तो उसका मतलब ये हुआ कि ये किसी पूल ऑफ वैल्यूज़ की बात कर रहा है जिससे हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ किसी गिवन कॉलम के लिए ड्रॉ की जा सकती हैं या लिखी जा सकती हैं, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर इन्होंने हमको एक एग्जांपल से भी समझाया हुआ है, जैसे कि ये एक डोमेन है, ठीक है, S1, S2, S3, S4, S5, S6 और S7, दिस इज़ वन डोमेन। अब इस डोमेन आप देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं उसी में रेंज कर रही हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं इसी की रेंज में है, S1 से लेकर S7 की रेंज में, है ना। हो सकता है कोई वैल्यू यूज़ नहीं भी हुई हो, बट दिस इज़ द डोमेन, ये हमारा डोमेन है, ये हमारा पूल है, ये हमारा पूल ऑफ वैल्यूज़ है। इन्हीं वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर यूज़ की जाएगी और आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो S1, S2, S3, S4, S5 ही दिख रही हैं, जो कि हमारे डोमेन में से ही सिलेक्ट की गई हैं। ऑलराइट, अगली चीज़ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो कॉलम्स जो होते हैं, हम कॉलम्स को फील्ड्स भी बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉलम्स, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स तीनों एक होते हैं, ठीक है। कॉलम, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स तीनों एक होते हैं। सिमिलरली देयर इज़ वन मोर टर्म विच इज़ गिवन, टपल। तो रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स, ये तीनों का मतलब भी एक ही होता है। अगर मैं बोलूँ आपको फील्ड, तो फील्ड मतलब भी कॉलम, एट्रीब्यूट तो एट्रीब्यूट मतलब भी कॉलम, रो तो रो मतलब भी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब भी रो, और टपल्स का मतलब भी होता है रोज या रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर ये हमको फील्ड के भी 3 नाम पता चल गए और रोज के भी 3 नाम पता चल गए, तो ये हमको नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन को कभी भी घुमा दिया जा सकता है, टपल्स टर्म यूज़ कर लेंगे रोज की जगह या एट्रीब्यूट्स टर्म यूज़ कर लेंगे कॉलम्स की जगह। सो वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज एंड वी शुड नो दैट दीज ऑल रिफर टू द सेम थिंग। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज डिग्री। व्हाट डज दिस डिग्री मीन? तो डिग्री क्या होती है, तो हमारे टेबल के अंदर जितनी रोज हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज हैं, तो मेरे टेबल की डिग्री होगी 5। और एक और टर्म आती है नीचे लिखी हुई है, ये कार्डिनैलिटी। तो मेरे अगर इस टेबल में 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये 1 और ये 2, अगर 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो मेरे इस टेबल की कार्डिनैलिटी होगी 2। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डिग्री इज द नंबर ऑफ fields in a relation, cardinality is the number of rows in a relation. And what does this relation mean? Relation mean a table. तो जब कभी आपसे बोला जाए what is a degree, so you should know that degree is a number of attribute. And what does cardinality mean? तो cardinality is number of tuples. तो ये टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आ रही है जिसको बोला है व्यू। व्यू क्या होता है? सो व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन इट्स ओन बट इज इंस्टेड डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल्स। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, फॉर एग्जांपल समझो, ये मेरा एक टेबल है जिसमें 1 2 3 रोल नंबर हैं और ABC ये वैल्यूज़ हैं। मैंने बोला मुझे उसका नाम बताओ जिसका रोल नंबर 2 है, तो मुझे यहाँ पर दिखा रोल नंबर का कॉलम, यहाँ दिखा नेम का कॉलम और आंसर आया 2 और B। तो मेरे पास जो मेन टेबल था वो तो था ये वाला, मेन टेबल तो मेरा लेफ़्ट साइड वाला था, पर मैंने इस मेन टेबल में से कौन सा डेटा ड्रॉ किया, कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो मैंने ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ये डेटा मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता, अलग से मेरे पास ऐसा कोई टेबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई नीड, अकॉर्डिंग टू द डेटा दैट आई वॉन्ट टू रिट्रीव, मुझे ये वाला टेबल मेरी स्क्रीन पर दिखा। तो ये जो टेबल मुझे मेरी स्क्रीन पर दिखा है इसको बोला जाएगा व्यू, ठीक है, इसको बोलेंगे व्यू, बिकॉज दिस इज़ अ वर्चुअल टेबल जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैंने रिट्रीव किया तो वो टेबल मुझे दिखाया गया। सो दैट इज़ द वर्चुअल टेबल दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड टू मी, और उस वर्चुअल टेबल को एक नाम दिया जाता है, उस वर्चुअल टेबल को बोला जाता है व्यू। तो हमको पता होना चाहिए व्हाट डज वर्चुअल टेबल मीन्स। वर्चुअल टेबल इज़ अ व्यू।
तो ये हमको कुछ चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, जैसे कि आ, ये एक आपके पास टेबल है, ये पूरा टेबल है क्या? हाँ। सिलेक्ट व्यू गुड्स आइटम एज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 12। अच्छा ये देखो, गुड्स आइटम्स नाम का हमारे पास ऊपर टेबल था क्या, मिल्क ब्रेड वाला? देखते हैं अब। ये रहा, देखो आइटम्स नाम का टेबल है। ठीक, ये आइटम्स नाम का टेबल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे, ये मेरा मेन टेबल है, ठीक है, ये मेरा मेन टेबल है जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब मैंने इस मेन टेबल में क्या किया, मुझे उनका रिकॉर्ड देखना है, उनकी वैल्यूज़ चाहिए जिनकी प्राइस 12 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, मुझे उनका डेटा देखना है जिनकी प्राइस 12 रुपये से ज़्यादा है। अब जब मुझे उनका डेटा देखना है जिनकी प्राइस 12 रुपये से ज़्यादा है, तो मुझे कुछ क्वेरी लिखनी पड़ेगी, है ना। अब क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो मैंने लिखी क्वेरी ये वाली। क्या क्वेरी लिखी? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स, ये लास्ट ईयर का टॉपिक है, ये भी और क्लियर होगा ये क्वेरी क्यों लिखी और कैसे लिखी। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स, और अगर सिर्फ इतना लिख देता सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आइटम्स तो सारा का सारा टेबल डिस्प्ले हो जाता। मुझे सारा टेबल डिस्प्ले नहीं करना था, सो आई हैव टू प्रोवाइड सम कंडीशन, और कंडीशन लिखनी होती है तो हमें लिखना पड़ता है वेयर, वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर कंडीशन दी वेयर क्लॉज के अंदर, और क्या लिख दिया, प्राइस इज ग्रेटर देन 12। जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो द टेबल दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन माई स्क्रीन इज दिस वन। ये टेबल एग्जिस्ट करता नहीं है, बट मुझे जो आउटपुट चाहिए था, मैंने जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहा MySQL से, तो ये डेटा मुझे डिस्प्ले कर दिया गया। तो ये जो डेटा मुझे डिस्प्ले कर दिया गया, इस डेटा को या इस टेबल को बोला जाएगा व्यू। इसको व्यू कहते हैं। ऑलराइट, तो ये कहलाता है व्यू। और क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर कीज़ के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन सी कीज़ होती हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी की क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। किसी भी टेबल के अंदर किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाली जो एक फील्ड होती है उसको बोला जाता है प्राइमरी की। ठीक है, किसी भी टेबल के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर किसी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक फील्ड होती है उसको प्राइमरी की कहा जाता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ये कैंडिडेट कीज क्या होते हैं? अब देखो, मेरे पास एक टेबल है, समझना ध्यान से। आई हैव अ टेबल, इस टेबल के अंदर रोल नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है और नेम भी है। तो यहाँ पर बताओ प्राइमरी की कौन कौन से हो सकते हैं? रोल नंबर रिपीट नहीं होगा, मोबाइल नंबर कभी रिपीट नहीं हो सकता, दो लोगों को एक जैसे ईमेल आईडी कभी नहीं दिए जा सकते। तो यहाँ पर 3 फील्ड्स ऐसी हैं जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। पर एक टेबल में तो एक ही को प्राइमरी की बना सकता है, तो हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। दिस इज कम्प्लीटली अप टू अस। बट मेरे पास है कितनी फील्ड्स जिनको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ? तो मेरे पास अभी 3 फील्ड्स हैं, एक है रोल नंबर, एक है मोबाइल नंबर और एक है ईमेल। तो ये जैसे कि ये अगर ये तीनों की तीनों अभी क्या है, तो ये तीनों की तीनों कैंडिडेट कीज हैं। ठीक है, ऑल द एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन इनसाइड रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट कीज। किसी भी रिलेशन के अंदर कोई ऐसी फील्ड जो प्राइमरी की बनने की हकदार है उसको कैंडिडेट की कहा जा सकता है। मतलब कि कैंडिडेट है वो, उसका एक वो कैंडिडेट, मतलब हमको टर्म क्या कह सकते हैं, हकदार ही कह सकते हैं। तो जो उस दावेदार, दावेदार विल बी द एक्चुअल वर्ड, प्राइमरी की बनने के जो जो दावेदार होंगे उनको हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज़। कि वो भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी प्राइमरी की बन सकते हैं, बट इट्स अप टू अस कि हम किसको प्राइमरी की बनाते हैं। तो प्राइमरी की डेफिनेशन क्लियर है। प्राइमरी की के बाद कैंडिडेट की, जैसे कि मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ईमेल और नेम। तो ये जो 3 कॉलम है शुरू के, ये तीनों कैंडिडेट की हुए। इसमें से मैंने ईमेल को प्राइमरी की बना लिया, तो ये तो कहलाने लग गया प्राइमरी की। ठीक है, ये तो कहलाने लग गया प्राइमरी की।
बचे हुए जो ये दो हैं ये भी तो प्राइमरी की के हकदार थे, ये भी तो उसके दावेदार थे। तो ये जो प्राइमरी की बन जाने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं उनको ऑल्टरनेट की कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। ठीक, तो जिसको प्राइमरी की बना दिया उसको तो आप प्राइमरी की कहने लगोगे, है ना। बचे हुए जो दो कैंडिडेट कीज हैं उन दोनों को अब हम ऑल्टरनेट की कहेंगे। ठीक है, फॉरेन की का कंसेप्ट जब हमारे चैप्टर में आएगा हम उसको तब डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि डीबीएमएस में हमेशा पालन करने होते हैं। तो वो यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर दिए हुए हैं। इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ डीबीएमएस यूजेस टू इंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड एंड दैट यूजर्स डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंज रिलेटेड डेटा। कभी भी आप गलती से किसी डेटा को डिलीट ना कर दो, डेटा लॉस ना हो जाए, उससे कुछ डेटा में चेंजेस ना हो जाए, उन चीज़ों के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो डीबीएमएस फॉलो करता है। और वो सारे नियम कानून कहाँ पर स्टोर्ड हैं, तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है उसके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब सेट की जा सकती है, जब फॉलोइंग कंडीशंस मेट करें, मतलब कि जब फॉलोइंग कंडीशंस सही हों तभी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज़ अ प्राइमरी की और एज अ यूनिक इंडेक्स। सीधी सी बात है, यूनिक इंडेक्स होना चाहिए। रिलेटेड फील्ड्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, सीधी सी बात है। और बोथ टेबल्स बिलोंग टू द सेम डेटाबेस, एक ही डेटाबेस में टेबल होना चाहिए। अगर ऐसी सारी कंडीशंस फॉलो होती हैं तभी हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को एनफोर्स कर सकते हैं। एक हिस्ट्री दी हुई है, कुछ ब्रीफ हिस्ट्री MySQL की, कि MySQL कब लॉन्च हुआ, कैसा सॉफ्टवेयर है, क्या करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो SQL का यूज़ करता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करता है। इसको हम www.mysql.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इसमें टेबल्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है। एक MySQL डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस स्टोर किए जा सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स स्टोर किए जाते हैं, और उन बहुत सारे टेबल्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर हम कर सकते हैं। MySQL जो है ये फास्ट है, रिलायबल है, स्केलेबल अल्टरनेटिव है दूसरे कमर्शियल जो पेड DBMS हैं उनके कंपैरिजन में MySQL एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, MySQL किसने क्रिएट किया था, तो MySQL AB ने क्रिएट किया था, उनका नाम ही था MySQL। ये AB ये कंपनी का नाम है जो कि सन माइक्रोसिस्टम के अंदर में आती है। सन माइक्रोसिस्टम वो जिसने जावा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जिसने इस कंपनी को बनाया, जिनका नाम था मॉन्टी, माइकल विडेनियस। तो ये जो माइकल विडेनियस था उनकी डॉटर का नाम था माय। ठीक है, उनकी डॉटर का नाम था माय, इसीलिए इन्होंने सॉफ्टवेयर का नाम रखा MySQL। और ये एक स्टोरी है जो बताई जाती है। तो जो इसके इन्वेंटर है उनकी डॉटर का नाम माय था, तो इसीलिए इन्होंने इस सॉफ्टवेयर का नाम MySQL रखा। और इसके लोगो में MySQL का जब आप लोगो देखोगे तो उसके लोगो में देखोगे कि एक डॉल्फिन होती है। तो मैंने जो आपको फ्रंट पेज भेजा है प्रैक्टिकल फाइल का, उसमें देखना, उसमें एक MySQL का भी शायद लोगो होगा। तो वो लोगो देखना आप, उसमें डॉल्फिन होगी, उस डॉल्फिन का नाम है सकीला, SAKILA। तो ये कुछ हिस्ट्री है MySQL की जो हमको यहाँ पर बताई हुई है। अगली चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं, तो ये हम बखूबी जानते हैं। सर्वर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्लाइंट्स मतलब वो सारे कंप्यूटर्स जो कि एक सर्वर से कनेक्टेड हैं और वो सर्विसेज उस सर्वर से लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये जो टॉपिक दिया हुआ है, की फीचर्स ऑफ MySQL, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ 11 की फीचर्स दिए हुए हैं MySQL के, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला की फीचर है स्पीड। ठीक है, अगर सर्वर की हार्डवेयर स्पीड ऑप्टिमल है तो MySQL बहुत फास्ट रन करता है, ये एक बहुत बड़ा MySQL का एडवांटेज है। ईज़ ऑफ यूज़, सेकंड जो की फीचर है वो है ईज़ ऑफ यूज़। MySQL को बहुत सिंपल डेटाबेस कहा जाता है। इसको हम इजीली हमारे सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली मॉनिटर कर सकते हैं,
ईजिली हम किन्हीं कमांड्स को लिखकर इसको मैनेज भी कर सकते हैं, तो इसको यूज़ करना बहुत आसान है। तीसरी चीज़ है कॉस्ट। चूँकि MySQL एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट या रॉयल्टी अमाउंट पे नहीं करनी होती है। इजीली आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, तो इसीलिए ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कोई कॉस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 3 की फीचर्स हुए। अगला की फीचर है क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। अब MySQL जो है उसके नाम में ही SQL है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट भी है। इसको पोर्टेबिलिटी मतलब कि हम इसको बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग कंपाइलर इंटरप्रेटर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स पे, एंड्रॉयड पे, विंडोज़ पे, यूनिक्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग इंटरप्रेटर्स, अलग अलग कंपाइलर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक पोर्टेबिलिटी भी इसका एक एडवांटेज है। अगला एडवांटेज है डेटा टाइप्स। MySQL में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। कुछ फिक्स्ड लेंथ हैं, कुछ वेरिएबल हैं, हमने देखा varchar, है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं जो हमको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं MySQL के अंदर, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है। सिक्योरिटी, तो यहाँ पर एक प्रिविलेज है, हम इनको पासवर्ड्स का यूज़ करके सिक्योर कर सकते हैं। MySQL को ऑन करते से पासवर्ड डालना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द पासवर्ड इज़ रूट, है ना। हम वो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और उसका यूज़ करके हम सिक्योर कर सकते हैं कंप्यूटर को। स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स, MySQL कैन हैंडल लार्ज डेटाबेसेस। बहुत लार्ज डेटाबेसेस भी ये MySQL हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो ये 50 मिलियन रिकॉर्ड्स, 50 मिलियन रिकॉर्ड्स जिसमें कि 60,000 टेबल्स और अप टू इतनी रोज़ को वो हैंडल कर सकता है। मतलब ये बहुत लार्ज अमाउंट का भी अगर आपके पास कोई डेटाबेस है तो उसको भी इजीली हैंडल कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। MySQL को इजीली हम सर्वर के कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स का यूज़ करके इजीली कनेक्ट भी कर सकते हैं दूसरे अलग अलग क्लाइंट्स के साथ। लोकलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो MySQL है ये बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको एरर मैसेजेस प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि अलग अलग कंट्री वाले अलग अलग लैंग्वेजेस में इजीली एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट पॉइंट इज क्लाइंट्स एंड टूल्स। MySQL में कुछ MySQL डम या SQL एडमिन नाम के कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम इजीली कुछ हमारे टेबल्स को चेक, ऑप्टिमाइज़ या रिपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स हमको कुछ की फीचर्स बताए हुए हैं MySQL के। ये सारे की फीचर्स हमको पता होने चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको जानना है। ऑलराइट, ये आपको पता ही होना चाहिए। स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स, MySQL सर्वर 5.1 और यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही ओपन किया था इसको, और ये उसको ओपन करने का तरीका इन्होंने यहाँ पर भी बताया हुआ है। जैसे ही आप इसको चालू करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक स्क्रीन दिखेगी। उस स्क्रीन पर आप लोगों को पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट हम तो यहाँ पर कौन सा पासवर्ड यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं रूट। हम इसको चेंज करते भी सकते हैं कॉन्फ़िगर करते टाइम, और दूसरा कोई पासवर्ड अगर हमको पुट करना है तो वो भी पुट किया जा सकता है। MySQL एंड SQL, MySQL और SQL के बारे में भी बताया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन MySQL डेटाबेस, all programs and user must use SQL. SQL is a set of commands that is recognized by nearly all RDBMS, ठीक है। SQL क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम डेटा बेसिस में क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो SQL है ये सेट ऑफ कमांड्स है। आप सिंपल टर्म्स में अगर याद रखो तो MySQL क्या है, MySQL एक डेटाबेस है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम किसी भी डेटाबेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
अगर एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स। ठीक, इसमें कुछ कमांड्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं, है ना। एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर जितने भी RDBMSs हैं वो सारे के सारे एसक्यूएल का ही यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ लैंग्वेज दैट enables us to create and operate रिलेशनल डेटाबेसेस। जो भी रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनको क्रिएट और ऑपरेट करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और वो एसक्यूएल होती है जिसको इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब एसक्यूएल के अंदर क्या होता है? तो एसक्यूएल के अंदर अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है DDL। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। हमारे टेबल को अगर आपको उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, जैसे कि ये मेरा टेबल है, उसमें एक नई फील्ड ऐड करनी है, किसी फील्ड को हटाना है, तो ये क्या होगा? ये उसके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। तो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए आप लोगों के पास DDL है, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल करके हम इजीली टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है DML, जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है DML। अब DML क्या होगा? तो DML होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब ये मेरा रिकॉर्ड है, इसमें कोई नया वैल्यू ऐड करना है, किसी एडेड वैल्यू को हटाना है, या किसी वैल्यू में कुछ चेंजेस करना है, तो वो सब कुछ कहाँ से होगा? तो वो मैनिपुलेशन करना हुआ, मतलब चेंज करना हुआ, तो वो DML से होगा। DML के अंदर कौन कौन सी कमांड्स होती हैं? तो होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DML के अंदर होती है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और DDL के अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। तो ये कमांड्स आपको पता होना चाहिए। अभी हम इन सारी कमांड्स को यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो DDL। तो DDL को इन्होंने यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन भी किया हुआ है, DDL क्या होता है। उसके बाद SQL स्टेटमेंट्स को यहाँ पर क्लासीफाई करके भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। तो क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप को बताया हुआ है, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ऐसा लिखकर हम क्रिएट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कमांड्स है जो इसके अंदर होती है, बट अभी हम क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप ही यूज़ करने वाले हैं। और है ग्रांट, रिवोक, मतलब कुछ परमिशंस देना, कुछ परमिशंस ले लेना किसी यूज़र से, तो उसको बोला जाता है ग्रांट एंड रिवोक। और कुछ कमांड्स को मेंटेन करने की भी चीज़ें DDL के अंदर होती हैं। DML नाम से पता चल रहा है डेटा को मैनिपुलेट करना, तो इट एनेबल्स यूज़र टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा एज ऑर्गेनाइज बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल, है ना। किसी भी डेटा को एक्सेस करना या उसको मैनिपुलेट करना है तो आपको DML का यूज़ करना पड़ेगा। डेटा को रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट या मॉडिफाई करना है तो वो सारे काम DML से ही होंगे। ठीक है, तो DML ही हमको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एक और थर्ड टाइप होता है जिसको बोलते हैं TCL, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो TCL होता है, यहाँ पर ऊपर दिया होगा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अंडर द TCL यहाँ पर कमांड्स आती हैं कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजैक्शन। कमिट और रोल बैक, कमिट का मतलब है आपने जितने भी कोड्स लिखे हैं और अगर आप कमिट लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली चेंजेस सेव हो जाएंगे। मतलब अब आप कुछ भी कोड करो, ऊपर तक आपने जितनी कोडिंग करी है वो सारी की सारी सेव हो चुकी है और अब उनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर कमिट किया और उसके नीचे इतनी सारी लाइंस लिख दी और अब मैंने यहाँ पर रोल बैक कर दिया, तो मैं आखिरी में जहाँ पर कमिट किया था वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और ये सारे चेंजेस डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कमिट और रोल बैक काम करता है। जब ये डिटेल में आएगा तब इसको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज इट फॉर दिस क्लास। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप लोग इस पूरे के पूरे वीडियो को एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और जो जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं, समझ नहीं आए हैं, उनको एक पेज में नोट डाउन कर लें और लिख लें, और जब हम स्कूल में मिलेंगे तब आप लोग मुझसे ये टॉपिक्स पूछ सकते हो। ऑलराइट, so students, thank you so much for today's class. See you in the next class.